Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is class 11th, subject botany, and the topic is classification of meristems or types of meristems. So far, the classification or types of meristems are concerned. These meristems have been classified on the basis of mode of origin, on the basis of position, on the basis of functions, and on the basis of cell division. These meristematic tissues, or we can say the meristems, have been classified or grouped into different categories based on these four criteria, including origin of these meristems, position of these meristematic tissues, third one is functions performed by these meristematic tissues, and last one is the cell division. So this is the criteria which have been used for classification of these meristematic tissues. Number first is based upon the origin. As far as the origin of these meristematic tissues is concerned, they have been divided or classified into two types. First one is the primary meristems. The second one is secondary meristems. This is classification on the basis of the origin of these meristematic tissues, which have been classified into primary as well as secondary meristems. Now, what are primary meristems or primary meristematic tissues? Primary meristems are those meristematic tissues or those meristems which are present in the plant right from very beginning. यानी प्राइमरी मेरिस्टम्स वो मेरिस्टम्स होते हैं जो प्लांट में पहले ही या प्लांट के पार्ट्स में पहले ही मौजूद होते हैं. सो दीज आर दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच आर प्रेजेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, और वी कैन से विच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्लांट. These are actually embryonic meristems. Embryonic meristems which retain their power of diffusion throughout their life. यानी जो प्राइमरी मेरिस्टम्स है ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में जो पहले से ही प्लांट्स में मौजूद होते हैं राइट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज. दीज आर प्रेजेंट, सो दीज कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी मेरिस्टम्स. ये जो प्राइमरी मेरिस्टम्स है इनकी एक एडवांटेज होती है, दे कैन रिटेन देयर
पावर ऑफ डिवीजन, यानी इनमें जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, दीज कैन रिटेन द डिवाइडिंग कैपेसिटी थ्रू देयर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेस्क्यूलर कैम्बियम, which is an example of primary meristem. Now, what is vesicular cambium? Vesicular cambium is that embryonic meristem, or we can say the primary meristem, which separates the xylem and phloem in a vesicular bundle. एक वेस्क्यूलर बंडल में जो कैम्बियम होता है इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, सपोज ये हमारे पास एक वेस्क्यूलर बंडल है, इसमें ये फ्लोएम है और यहाँ ये जाइलम है. हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ सपोज अगर आपके पास ये एक वेस्क्यूलर बंडल है, जैसे मैं यहां बनाऊंगा, यहां ये सपोज दिस इज द फ्लोएम एंड हियर इट इज xylem, it is xylem, and in between this xylem and phloem there is presence of this strip which is known as cambium. ये कैम्बियम एम्ब्रियनिक मेरिस्टम होता है. जब ये वेस्क्यूलर बंडल बनती है, जब एक प्लांट में वेस्क्यूलर टिश्यू बनता है, तो ये कैम्बियम उसी वक्त वहां बनता है. दैट इज दिस कैम्बियम इज एम्ब्रियनिक मेरिस्टम, और वी कैन से इट इज प्राइमरी मेरिस्टम. दिस कैम्बियम विच सेपरेट्स द फ्लोएम फ्रॉम द जाइलम विद इन ए वेस्क्यूलर बंडल, इट इज नोन एज वेस्क्यूलर कैम्बियम. सो द वेस्क्यूलर कैम्बियम इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम. It is present from very beginning. यही वो टिश्यू है जो लेटर ऑन वेस्क्यूलर टिश्यू बनाता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. सो प्लांट्स में जितने भी मेरिस्टम्स राइट फ्रॉम बिगिनिंग होंगे, दोस मेरिस्टम्स कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी मेरिस्टम्स, एंड दीज आर मोस्टली इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी ग्रोथ. So their main function is they are involved in primary growth. For example, they can increase the length of plants. Increasing the length of plants. यहाँ अगर हम एपिकल मेरिस्टम की बात करेंगे, वो भी एक प्राइमरी मेरिस्टम है. ये प्लांट्स के टिप्स पे होता है, या प्लांट की जो एक्सिस होती है उस एक्सिस के टिप पे जो मेरिस्टम होगा, दैट मेरिस्टम इज प्राइमरी मेरिस्टम, दिस एपिकल मेरिस्टम. सो एपिकल मेरिस्टम्स आर मोस्टली इन्वॉल्व्ड इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट्स. सो दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और व्हिच आर, in other words we can say which are embryonic meristems, they are considered as primary meristems. Example best for the primary meristem is, best example is vascular cambium, and function of this primary meristem is they can increase the length of plants. They are mostly involved in primary growth. देखिए प्लांट्स में दो किस्म की ग्रोथ होती है, एक जिसको हम प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ, और एक ग्रोथ होती है सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ. यानी आपके पास एक प्लांट है, इस प्लांट की ये मेन एक्सिस है, ये इसकी अगर लेंथ इंक्रीज हो गई, यहाँ ये ब्रांचेस है, यहाँ इनकी लेंथ अगर इंक्रीज हो जाती है, तो वी कैन से दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से, अगर कोई प्राइमरी टिश्यू बना, जैसे प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, if there is formation of any kind of primary tissue, we can say it is primary growth. Or if there is increase in length of plant, we can say it is the
प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है जब एक प्लांट की थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी तो दैट काइंड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ, और इन अदर वर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज। यानी प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है प्राइमरी टिश्यूज बनना। जब एक प्लांट में प्राइमरी टिश्यूज बनेंगे, सो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी टिश्यूज लाइक प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, इट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ, और increasing length of the plant is considered as primary growth. And secondary growth means either formation of secondary tissues like secondary xylem, secondary phloem, or increase in thickness of plant is known as secondary growth. So primary meristems are mostly involved in primary growth. They can form new tissues, they can form new organs, or they can increase the length of plants. So such tissues are considered as primary, which are primary in origin and primary in function. So far as the origin of these tissues is concerned, they are primary in origin as well as they are primary in function, because they are mostly involved in primary growth, hence they are primary in function as well as their origin is primary. They are present right from the beginning. So these tissues are considered as primary meristems, which are present right from very beginning, or which are primary in origin. After this, there is one more type of meristematic tissue as far as the origin of these meristems is concerned. So this is secondary meristem. सेकेंडरी मेरिस्टम का मतलब क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टम्स वो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं जो प्लांट में पहले से मौजूद नहीं होंगे। दोज मेरिस्टमेटिक टिश्यूज which occur later on in the plant, they are considered as secondary meristems. यानी those tissues, those meristematic tissues which are not present at the beginning but occur or develop later on, these tissues are known as secondary tissues or secondary मेरिस्टम्स। यानी ये वो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में जो पहले से प्लांट्स में नहीं होते हैं लेकिन बाद में फिर प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। सो सच टिश्यूज आर नोन एज सेकेंडरी टिश्यूज। ऑल दोस टिश्यूज व्हिच आकर लेटर ऑन और व्हिच आर फॉर्मड फ्रॉम द प्राइमरी टिश्यूज, दे आर कंसिडर्ड एज secondary meristematic tissues. For example, we have interfascicular cambium. It is an example of secondary meristematic tissue. इसी तरह we have one more example of secondary meristematic tissue which is called cambium. So interfascicular cambium या कारक cambium वो meristematic tissues होते हैं प्लांट्स में जो पहले से प्लांट्स में मौजूद नहीं होते हैं बट कैन ऑकर और डेवलप लेटर ऑन, और these can develop from the primary tissues. So these meristematic tissues are secondary meristems, or in short we can say meristems which are secondary in origin and secondary in function. Those are known as secondary type of meristems. यानी इनका ऑरिजिन भी सेकेंडरी होगा और इनकी फंक्शन भी सेकेंडरी होगी। जैसे मैंने अभी आपको प्राइमरी मेरिस्टम में बताया, उनका ऑरिजिन भी प्राइमरी है और उनकी फंक्शन भी प्राइमरी है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब है वो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे प्लांट्स में, प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे, जैसे इंक्रीज जो प्लांट की लेंथ है इसको इंक्रीज करने का काम जो है। सो दोज मेरिस्टम्स आर नोन एज प्राइमरी मेरिस्टम्स। इसी तरह यहां जो सेकेंडरी मेरिस्टम्स है, दीज आर सेकेंडरी इन ऑरिजिन एज वेल एज दे आर सेकेंडरी इन फंक्शन।
सेकेंडरी फंक्शन का मतलब यहां है दे आर इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ प्लांट। ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो विच आर इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ प्लांट। जैसे यहां इंटरफेस्कुलर कैम्बियम की बात मैंने की या कॉर्क कैम्बियम की, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम्स। अगर हम इंटरफेस्कुलर कैम्बियम की बात करेंगे, ये वो कैम्बियम है दैट इज प्रेजेंट और दैट लाइज इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। एक कैम्बियम मैंने अभी कहा फेसिक्यूलर, या जिसका नाम मैंने वेस्कुलर कैम्बियम बताया, वो कैम्बियम जो एक वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करेगा, दैट इज वेस्कुलर, और इट इज आल्सो नोन एज फेसिक्यूलर कैम्बियम। वेसिक्यूलर कैम्बियम हो या फेसिक्यूलर कैम्बियम हो, ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम है तो उसका नाम है प्राइमरी मेरिस्टम। लेकिन यहां मैंने इंटरफेस्कुलर कैम्बियम की बात की, ये वो कैम्बियम है दैट लाइज इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। सपोज ये आपके पास एक वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरी वेस्कुलर बंडल है, इसका ये अपना फ्लोएम, ये इसका जाइलम, दैट इज दिस इज फ्लोएम, this is the xylem of this vascular bundle, and here it is intrafascular cambium or vesicular cambium or fascicular cambium। सपोज ये कैम्बियम जो फ्लोएम और जाइलम के बीच है, it is vesicular cambium or fascicular cambium or intrafascular। यहां भी ये फ्लोएम, ये इस वेस्कुलर बंडल का जाइलम, ये अपना कैम्बियम जिसको मैंने यहां लिखा वेस्कुलर या fascicular। अब एक और कैम्बियम जो लेटर ऑन बनता है इस प्लांट में या इस प्लांट के पार्ट में, वो कैम्बियम जो इस वेस्कुलर बंडल के बीच होगा, यहां इस और इस वेस्कुलर बंडल के बीच में होगा। सपोज यहां ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरी वेस्कुलर बंडल है, इसका अपना कैम्बियम, इसका अपना कैम्बियम, इट इज फ्लोएम ऑफ दिस वेस्कुलर बंडल, दिस इज जाइलम ऑफ दिस, हियर इट इज फ्लोएम, इट इज जाइलम। इसका भी अपना कैम्बियम जो इस फ्लोएम और जाइलम को सेपरेट करेगा, इसका भी अपना कैम्बियम जो इस फ्लोएम और इस जाइलम को सेपरेट करेगा। हियर इट इज फेसिक्यूलर, वेसिक्यूलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, बट दिस टाइप ऑफ कैम्बियम व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू वेस्कुलर बंडल्स, इट इज नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। ये वो कैम्बियम है जो पहले से यहां नहीं होता है, it is formed during later stages of development, hence it is known as secondary meristem। it is known as secondary meristem। अब इसकी काम क्या है, ये secondary tissues बनाएगा, that is secondary xylem और secondary phloem। hence वो meristematic tissue जिसका origin भी secondary होगा और जिसकी function भी secondary होगी, उस type of meristematic tissue का नाम है secondary meristem or secondary meristematic tissues। so these are those types of tissues which occur later on, and their function is mostly they are involved in the formation of secondary tissues like secondary xylem and secondary phloem। interfascicular cambium as well as coric cambium, they are the examples of secondary meristematic tissues। this was on the basis of the origin। so meristematic tissues are of two types, one is primary and secondary, it is based on origin। so far as the function of these meristematic tissues is concerned, there are three types, so based upon functions of meristematic tissues। that means कौन सा meristematic tissue कौन सी काम करेगा, कौन सा टिश्यू बनाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स। फर्स्ट वन इज प्रोटोडर्म, सेकंड इज प्रोकैम्बियम, एंड थर्ड वन इज ग्राउंड मेरिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में
डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। ये वो सेल्स होते हैं या ये वो टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड होके नए नए टिश्यूज या नए नए सेल्स बनाते हैं, यानी इनमें पावर ऑफ डिवीजन होता है। ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। इसी तरह यहां ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, these have been classified into three types. First one is protoderm, the second one is prochemium, and the third one is ground meristem. Now what is protoderm? These are those meristems which form epidermal टिश्यू सिस्टम, यानी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या वो मेरिस्टम्स जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएंगे उनका नाम है, या उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम है प्रोटोडर्म. सो प्रोटोडर्म इज मोस्टली इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. नाउ द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस टिश्यू सिस्टम इंक्लूड, फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, cytomata, there is presence of in certain plants trichomes, there is one more type of cell layer that is known as cuticle. So these are actually components of this epidermal tissue system: epidermis, cytomata, trichomes as well as cuticle. So a kind of meristematic tissue which is mostly involved in the formation of epidermal tissue system is known as protoderm, and the different components of this epidermal tissue system include epidermis, cytomata, trichomes as well as cuticle. Now what is this epidermis? एपिडर्मिस क्या होता है? अगर हम लीफ की बात करेंगे, सिटम की बात करेंगे या रूट की बात करेंगे, हर किसी प्लांट पार्ट में, चाहे लीफ हो, चाहे सिटम हो, चाहे रूट हो, इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, दिस इज एक्चुअली आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन और प्रोटेक्टिव इन नेचर. सच अ काइंड ऑफ टिश्यू दैट कवर्स द लीफ, सिटम और रूट, इट इज नोन एज एपिडर्मिस. जैसे हमारी बॉडी में स्किन होता है डर्मिस, प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसी तरह यहां प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स है, जैसे मैंने लीफ, सिटम या रूट की बात की, यहां इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज एपिडर्मिस. और इसकी मेन फंक्शन यहां अगर हम देखेंगे, दिस एपिडर्मिस इज मोस्टली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इट कैन प्रोटेक्ट दी प्लांट पार्ट्स. इसी एपिडर्मिस में अगर लीफ की बात करेंगे या यंग सिटम होगा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स व्हिच आर नोन एज सिटोमेटा. इसका कॉन्सेप्ट आपको होगा. दीज आर मोस्टली इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन ऑफ द प्लांट्स. सो दीज स्मॉल ओपनिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल cells of the leaves or in young stems, these are known as stomata. इसी तरह ट्राइकोम्स, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये सारे प्लांट्स में नहीं होते हैं. हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, these are known as ट्राइकोम्स. और क्यूटिकल, ये एपिडर्मिस के ऊपर एक और थिक कवरिंग होती है, दिस इज नोन एज क्यूटिकल. सपोज ये जो आउटर मोस्ट सेल्स की लेयर है, लीफ की बात करें, सिटम की बात करें, तो दिस इज नोन एज एपिडर्मिस. मोस्टली एपिडर्मिस आसन ये इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस की सिंगल लेयर, एक ही लेयर का होता है. सेल्स इतने ज्यादा थिक नहीं होते हैं, तो इसके ऊपर जो थिक कवरिंग होती है सेल्स की, दिस इज नोन एज क्यूटिकल. इट कैन रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन व्हेन इट इज थिक and it can give protection to the epidermal layer. इसी तरह यहां there is presence of these small openings which are known as cytomata. जैसे यहां ये है cytomata और ये है epidermis. ये इसका क्यूटिकल है
कभी कभार किसी प्लांट में यहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच आर नोन एज ट्राइकोमस. They can reduce the surface area. So this is outermost covering of the plant parts, which is known as epidermis. All those tissues or all those structures which are associated with this epidermis, it can form the epidermal tissue system. And the meristematic tissue, which is mostly responsible for the formation of this epidermal tissue system, is protoderm.